session. Fine. Okay. In the previous chapter, we have seen that the French society was divided into three states, right? The first one was of clergy, which include people related to church, like it can be priest or someone related to church. Then second was nobility. Second state was nobility. They had noble peoples, all the rich persons were there in second estate, and the third estate was leaving all of these people, like first estate or second estate को छोड़ के जो सारे बच जाते हैं, it can be merchants, it can be lawyers, it can be peasants, workers, laborers, जो भी बच जाते हैं वो थर्ड estate में थे. इतना हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट? Then second was लाइफ रेट. ये क्या था? एक यूनिट ऑफ करेंसी था फ्रांस का. फ्रेंच वर्ड है तो again the pronunciation can be different. Then we have seen teats. Teats क्या था? It was a tax which was like 1/10 tax था जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितना उनका प्रोड्यूस होता है वो लोग चर्च में देते थे. एंड सेल was another tax which was directly paid to the state. इतना हम लोग ने देखा था, राइट पार्थ? Yes, ma'am. Yeah. फिर हम लोग ने देखा what we have seen further, that struggle to survive. There was subsistence crisis. What does that mean? कि एक basic जो livelihood के लिए जो food चाहिए और normal basic immunities, जो normal basic चीजें चाहिए वो सारी बढ़ गई थी. उनके ऊपर भी टैक्स लग गया था. तो subsistence crisis was that the basic means of livelihood were endangered, right? And then we have seen that middle class were now growing. कि जो middle class था, yeah. मैम आपका साउंड बहुत धीरे आ रहा है. Okay. Now is it audible? Yes, ma'am. Now it is little. Okay. So middle class का फिर हम लोग ने देखा 1.3 में that now middle class was growing, that now they understood that education is an important part, and then they decided कि हमारा जो future generation आएगा उसको हम लोग education का access देंगे. And then the third state was emerging. Now उसमें they started, like third state के जो लोग थे, they started becoming lawyers, administration officers, manufacturers and एक्सेट्रा, राइट? फिर हम लोग ने देखा कि थर्ड स्टेट ग्रो कर रहा था. नाउ एट दैट पॉइंट हम लोग ने लास्ट में देखा था दैट लुइस 16 ने प्लान किया था दैट नाउ आई नीड टू इम्पोज टैक्स, क्योंकि द नेशन वाज फेसिंग अ फाइनेंशियल इशू. एंड उसको लगा, किंग को लगा, लुइस 16 को, दैट नाउ आई नीड टू इम्पोज टैक्स. अगर मैंने टैक्स बढ़ाया तो ही मैं मेरे पैसे, जो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो मैं ठीक कर सकता हूँ. बरोबर? इतना हम लोग ने देखा था फर्स्ट पार्ट में. क्विक रिस्पॉन्स बच्चा, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए. यस मैम, नो मैम, फटाक से बोलो. व्हाट आर यू डूइंग? स्विच ऑन योर कैमरा. Fast. Sir has said me, when you say something and if the kid doesn't do that, remove the kid out of the session and then sir will talk to your parents. So do you want me to do that? Okay. See, now the second chapter is the outbreak of revolution. Fine. अभी यहाँ पे क्या होता है, we will see. Louis 16 has to increase taxes for reason you have learned in the previous section, right? कि हम लोग ने previous section में देखा that the country was facing financial problem and therefore Louis 16 decided to increase the taxes. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the Estates General, which would then pass his proposal for new tax. के ऐसे नहीं होता था कि किंग ने सोच लिया कि ओके मैं अचानक टैक्सेस बढ़ा दूंगा तो वो बढ़ा सकता है. नो, ही हैड टू कॉल अ मीटिंग कि अगर आप कोई भी नया रूल बना रहे हो या कोई भी नया
टैक्स रिलेटेड लॉ बना रहे हो, सो फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट अ मीटिंग. उस कौन सी मीटिंग? स्टेट जनरल की मीटिंग. फिर स्टेट से अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, देन दे विल हैव अ डिस्कशन एंड देन ओनली किंग कैन इंक्रीज टैक्स. ऐसे ही किंग बढ़ा नहीं सकता, राइट? तो यहाँ पे वही लिखा है that he cannot impose the tax according to his own will. He has to create a meeting and then ask for this proposal of new tax and then वो law pass होगा and फिर वो लोगों के ऊपर tax impose कर सकते हैं. The state general was a political body to which 3 states send their representative. ठीक है, तो अभी एक यहाँ पे एक देख लो, स्टेट्स जनरल क्या होता है. इसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, फिर मीटिंग क्रिएट होती है, लॉज पास होते हैं, लॉज डिसाइड होते हैं एंड फिर एक नया लॉ बनाया जाता है. तो ये स्टेट जनरल में कौन कौन आते हैं? तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं. However, the monarch alone could not decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. अभी हम लोग कौन सी सेंचुरी का बात कर रहे हैं? 17th सेंचुरी का. एंड किंग, ये लास्ट मीटिंग कभी हेल्ड हुई थी? 1614. मतलब क्या? लुइस 16 के जनरेशन, लाइक उसके डैड या तो उनके ग्रैंडफादर ने उस जमाने में 1614 में मीटिंग हेल्ड की थी. उसके बाद कोई भी मीटिंग हेल्ड हुई नहीं थी. तो अभी तक फर्स्ट पैराग्राफ में समझा व्हाट वी हैव स्टडीड एट द लुइस 16 ही कैन नॉट जस्ट क्रिएट अ न्यू लॉ. उनको उसके पहले जनरल असेंबली की मीटिंग, स्टेट जनरल की मीटिंग बनानी पड़ती है एंड इन दैट ही हैज टू पास कि मुझे एक नया लॉ पास करना है वैसा. So this was the case in first paragraph. Daksh, have you entered? Should I, recollect what we have done in first paragraph? हमारा first paragraph हो गया है. Yes, ma'am. Okay, so what we have seen till the last chapter that Louis 16, किसका mic ये है? पार्थ, हाँ. Louis 16, we have decided that Louis 16 had decided to impose tax, but he alone could not do it, right? उसके लिए he need to call a state general का meeting. State general क्या है? State general एक political body है. Okay, political body जिसमें कौन कौन आते हैं? इसमें तीनों states के representatives आते हैं. तीनों states के representative आते हैं. They decide कि हम लोग को एक लॉ बनाना है या नहीं. पार्थ, आपके माइक कर दो. पार्थ, अनम्यूट योर माइक. या तो दीज स्टेट जनरल, इसमें कौन? तीनों स्टेट्स जो हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़े थे नोबल्स का, यहाँ पे जो हम लोग ने पढ़ा था तीनों स्टेट्स, नोबल्स थे, क्लर्जी थे, सी यहाँ पे नोबल्स, क्लर्जीज एंड फिर बिग बिजनेसमैन, पीजेंट, स्मॉल फार्मर्स, ये सारे. तो इनकी जो तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं एंड देन दे क्रिएट अ मीटिंग. सो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में वही बताया था कि अगर लुइस 16 को लॉ पास करना है तो वो अकेले पास नहीं कर सकते, उनको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवानी पड़ती है. एंड दैट लास्ट मीटिंग वाज कॉल्ड इन 1614. अभी हम लोग 17th सेंचुरी में है, तो लास्ट मतलब कहाँ पे हेल्ड हुई थी? 1614 में. मतलब उनके एंसेस्टर्स ने कहीं पे एक जमाने में वो मीटिंग हेल्ड की थी. Now we'll see the second paragraph. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposal for new tax. फिर उसको पता चला, Louis XVI हम लोग ने लास्ट चैप्टर में ही देखा, he was just 20 years old, तो उसको इतना नॉलेज नहीं था. But when he got to know that I need to create an assembly, I need to recall an assembly, फिर उन्होंने वापस असेंबली बुलाई एंड उसमें वो न्यू टैक्स के बारे में बताया. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. Delegates मतलब क्या? कि जो लोग वहां पे आए थे वो. And resplendent is a huge and attractive hall. So very beautiful hall में ये meeting held की गई थी. The first and the second estates sent 300 representatives each, who were seated in first row facing each other on two sides. तो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है. फर्स्ट स्टेट्स के जो ये थे लोग थे, उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव थे. और सेकेंड स्टेट के कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव थे. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों के मिला के 300 हो गए.
एंड उनको बैठने के लिए चेयर्स थे, वो लोग मस्त चेयर्स पे बैठे थे दोनों। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, सी थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट दी बैक, बट जो थर्ड स्टेट था उनका उनके लिए कोई बैठने के लिए जगह नहीं थी, एंड दे वे स्टैंडिंग एंड दे हैड टू स्टैंड एट द बैक साइड। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड by its more prosperous and educated members। अभी हम लोग ने थर्ड स्टेट में देखा था कि थर्ड स्टेट में बहुत मतलब जो पीछे चर्च से रिलेटेड लोग हैं और नॉबल्स को छोड़ के सब थर्ड स्टेज में आते हैं। तो थर्ड स्टेट में भी अगेन देयर इज अ कैटेगरी, लाइक एक है जो पुअर लोग है, जो पुअर्स है, वर्कर्स है, वुमेन्स है, वो सारे थर्ड स्टेट के लोअर कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड स्टेट के हायर कैटेगरी में यू हैव लॉयर्स, यू हैव डॉक्टर्स, तो वो सारे प्रोस्पेक्ट यहाँ पे वही लिखा है, देखो द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। तो जो सारे एजुकेटेड मेंबर्स थे एंड जो सारे प्रॉस्परस लोग थे वही सिर्फ ये मीटिंग में आए थे। पीजेंट आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड, उनको डिनाइड मतलब दे वर नॉट गिवन एंट्री टू द असेंबली। कौन, जो पीजेंट थे, आर्टिसंस थे और वुमेन्स थे, उनको इसमें एंट्री नहीं थी। हाउएवर their grievances and मैम demands, या ये एक मीटिंग था क्या? हाँ, जनरल असेंबली मैंने ऊपर बताया ना, जनरल असेंबली का फिर मीटिंग बुलाया गया बिकॉज मतलब लॉ जो, मैम मीटिंग में इतने सारे जन भी आते हैं? हाँ उस टाइम पे कैसे था, 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। तो फर्स्ट असेंट, जो फर्स्ट स्टेट है उनके 300 लोग थे, जो सेकंड थे उनके 300 लोग थे, और यहाँ पे लिखा है देखो 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे, क्योंकि थर्ड स्टेट में ज्यादा लोग थे ना। हम लोग ने ऊपर देखा कि फर्स्ट में खाली चर्च से रिलेटेड लोग थे, तो चर्च से रिलेटेड लोग खाली 300 थे। फिर सेकेंड हम लोग ने देखा नोबल्स, नोबल्स मतलब क्या, जो किंग से रिलेटेड हो गए वो सारे, तो वो सारे 300 थे। बट थर्ड का कैटेगरी क्यों बड़ा था, थर्ड के नंबर्स क्यों ज्यादा थे, क्योंकि उसमें सभी कैटेगरी के लोग आ गए ना, पीजेंट आ गए, वुमेन आ गए, लॉयर आ गया, डॉक्टर आ गया, फिर पुअर पर्सन आ गए, तो उनकी पॉपुलेशन उनका ज्यादा था, तो इसके लिए उनके 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। समझा? तो फर्स्ट से 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब सेकंड से 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, और थर्ड से 600 मैम रिप्रेजेंटेटिव थे। ये तीनों को मिला के पूरा जनरल असेंबली बनाया गया था। हाँ मैम बोलो। मैम थर्ड स्टेट में 600 मेंबर्स में पीसेंट्स भी आए थे? पीजेंट्स नहीं, चर्च से रिलेटेड यहाँ पे देखो, चर्च मतलब इससे रिलेटेड जो हम लोग ने अभी जस्ट देखा ना, ऊपर मैंने आपको बताया ना, सी, हाँ 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 मैम बताया था। ये देखो क्लर्जी, क्लर्जी प्रीस्ट, जो चर्च से रिलेटेड हो गए ना, प्रीस्ट आ गए, फादर्स आ गए, वो सब फर्स्ट स्टेट में आते। सेकंड मतलब नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब क्या, जिनको किंग से रिलेटेड होंगे, जैसे किंग हो गए, उनके ये सारे हो गए रिलेटिव्स, वो सारे। एंड थर्ड में बाकी बच्चे कुचे सब लोग। मतलब अंडरस्टूड? थर्ड में मैम पीसेंट्स वगैरह भी आए, तो नीचे लिखा था कि पीसेंट्स आर्टिसंस और वुमेन्स अलाउड नहीं थे मैम। या यहाँ पे देखो थर्ड स्टेट में कैसे है, अभी यहाँ के दोनों छोड़ के, आपका माइक एक मिनट अनम्यूट कर लो, ये दोनों को छोड़ के सभी इसमें थे, क्लर्जी और नोबिलिटी को छोड़ के सभी थर्ड स्टेट में आए। अभी इसमें कैसे है, फर्स्ट कैटेगरी होती है बिग बिजनेसमैन, फिर जो मर्चेंट्स है, जो लॉयर है। थर्ड स्टेट में भी अगेन यू हैव कैटेगरीज। तो फर्स्ट कैटेगरी किसकी है, जो बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स है, कोर्ट ऑफिशियल्स है, उनकी। फिर उसके नीचे आते हैं पीजेंट एंड आर्टिसंस, एंड फिर उसके नीचे आते हैं स्मॉल पीजेंट, लैंडलॉर्ड, सर्वेंट्स, वैसे। तो यहाँ पे जो मीटिंग में जिनको बुलाया गया था वो थर्ड कैटेगरी के सिर्फ ये लोग थे, थर्ड कैटेगरी के फर्स्ट कैटेगरी वाले। समझा? ये दोनों को अलाउड नहीं था, ये दोनों को परमिशन नहीं थे, ओनली थर्ड कैटेगरी का जो फर्स्ट ये है उनको। यस मैम समझा मैम। ओके, थैंक यू। सी, so that was the case. तो जो पीस वेट लेट मी गो,
तो यहाँ पे वैसी असेंबली बुलाई गई थी एंड इनको कैसे थर्ड कैटेगरी के लोगों को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला था. दे वर स्टैंडिंग. Peasant artisans women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listened in some 40,000 letters which were the representatives had brought with them. But अभी जो नीचे के कैटेगरी थे थर्ड में वापस you have 1, 2 and 3 कैटेगरी, तो 1 वाले अलाउड थे, बट जो सेकेंड और थर्ड है उनके अगर कोई प्रॉब्लम हुए, ग्रीवेंसेस इज प्रॉब्लम, तो अगर उनका कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग आए ना, मतलब जो पीजेंट आर्टिसंस और वुमेन आए ना थर्ड कैटेगरी में से फर्स्ट लोग, वो उनको वो लेटर्स लेके आए थे. देयर वर 40,000 लेटर्स, मतलब 40,000 प्रॉब्लम्स थे एंड वो सारे वो लेटर्स में लिख के वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब जो पीजेंट थे, आर्टिसंस थे, सॉरी प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर्स थे, वो लोग ये सारे प्रॉब्लम्स 40,000 लेटर्स में लेके आए थे. मतलब मैम इतने कम जन और इतने ज़्यादा लेटर्स, मतलब एक आदमी ने 2-3 बनाए थे क्या ऐसे? नहीं, मीन्स इट वाज द प्रॉब्लम. 40,000 लेटर्स मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स थे लोगों के, सिंस दे वर नॉट अलाउड टू कम, राइट, तो वो अपने प्रॉब्लम्स कैसे शेयर करेंगे, तो इसके लिए ये लेटर्स के थ्रू वो लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आए थे. वैसा समझो. इट वॉज अ ह्यूज नंबर. बच्चा जो थर्ड कैटेगरी था ना उसमें बहुत सारे लोग आए. अभी आगे वी विल सी द नंबर के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितने लोग थे. बट अभी बेसिक आइडिया समझा. जनरल असेंबली बुलाया गया, स्टेट जनरल का जो असेंबली था वो बुलाया गया था. उसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट कैटेगरी के थे, 300 क्या पीपल सेकेंड कैटेगरी के थे एंड 600 पीपल थर्ड कैटेगरी के थे. इतना बेसिक आइडिया आया सबको? यस मैम. हाँ. ओके. अभी देखो, अभी हम लोग वोटिंग कैटेगरी देखेंगे कि स्टेट जनरल की वोटिंग कैटेगरी कैसी है. वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल इन द पास्ट had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time to Louis 16 was determined to continue the same practice. अभी कैसा प्रैक्टिस था देखो, हम लोग ने देखा फर्स्ट के 300 लोग थे. अरे यार, डोंट माइंड माय ड्राइंग. सेकंड के 300 लोग थे. ओ माय गॉड, इट्स वेरी बैड बट प्लीज डोंट माइंड. और थर्ड के 600 लोग थे. इतना हम लोग ने ऊपर देखा. अभी वोटिंग कैटेगरी कैसे थी, दैट it has been conducted according to the principle that each state had one vote. Okay, मतलब 300 लोग का एक वोट गिना जाएगा, फिर ये 300 वोट का एक वोट गिना जाएगा और ये 600 लोग का एक वोट गिना जाएगा. ईच स्टेट हैड वन वोट. तो ये 1 2 3 3 स्टेट्स है और तीनों के 1 1 वोट ऐसे निकाले जाएंगे. बट members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. अभी लॉजिक वाइज देखे गया तो जो 600 ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनका डिमांड क्या था कि ऐसे मत करो ना सबका एक एक वोट, क्योंकि यहाँ पे तो फिर मेजोरिटी होगी, ये दोनों साथ में आ जाएंगे, इनके दोनों वोट का मेजोरिटी होगा और ये लोग हमेशा अकेले ही हो जाएंगे एक वोट के साथ. सो दैट इज व्हाई दे गिव एन आइडिया कि ऐसे मत करो आप लोग, हर एक स्टेट का एक एक वोट मत लो, कंसिडर्ड एन असेंबली एज अ होल के हर एक मेंबर का एक एक वोट लो. समझा. तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ का सबका एक वोट, यहाँ का सबका एक वोट और यहाँ का सबका एक वोट. अभी ऐसे देखा जाए तो यहाँ का एक वोट आ जाएगा, यहाँ का एक. अभी 600 है तो 600 में से अगर आप 300 का एक एक वोट ले रहे हो तो यहाँ पे ये डिवाइड होना चाहिए, राइट, कि ये 300 होना चाहिए और ये 300 होके 2 वोट्स आने चाहिए, एक इनका एक और इनका एक, तो फिर इनकी भी मेजोरिटी हो सकती है. बट इनको हमेशा थर्ड स्टेट को नीचा दिखाना था, मतलब दे जस्ट वांटेड टू शो दैट दे आर लोअर कैटेगरी पीपल and that is why they just gave them one vote. So the third state people they demanded कि नहीं, हम लोग को assembly as a whole and each member should be given a one vote. ये उनका डिमांड था. और ये किसने हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा, कौन कौन से फिलोसोफर्स देखे हम लोग ने दक्ष लास्ट चैप्टर में? 3 फिलोसोफर्स देखे, राइट दक्ष? which were those philosophers?
Daksh, are you there in the meeting? Yes, miss. So which philosophers we have seen in the last chapter? Miss, in the last chapter. Yeah, the first part which we have done. Miss Roshi करके कहाँ था? Sorry, Miss, 1 second. आपने होमवर्क किया था ना? Miss, yesterday I didn't attend the class, so I didn't know what was the homework. Yesterday we didn't had a social science का लेक्चर बच्चा, हम लोग का कल इंग्लिश लेक्चर था. उसके पहले लास्ट वीक में जो मैंने लेक्चर लिया था Yes, उसमें yes, आप थे ना? yes, miss. Yeah, so in that we have seen 3 philosophers, right? The philosopher they had their idea. उसमें से तीनों philosopher में से कोई एक दो का philosopher का नाम बताओ. Miss, Switch on your camera. Switch on your camera fast. Don't waste my time. Yeah. कौन से philosophers देखे थे हम लोग ने last lecture में? The time when you guys are doing homework, आप लोग learn नहीं कर रहे हो क्या? खाली homework करने के लिए कर रहे हो? एक का नाम तो यहीं पे दिया है सामने बच्चा, एक का नाम यहीं पे है. रूसो देखा था हम लोग ने, राइट? रूसो. Miss, I forgot his name, full name. ओके, कोई बात नहीं. चलो यहाँ पे देख लो, वापस ऊपर हम लोग जाते हैं. बट याद रखो बच्चा लोग, ऐसा नहीं करने का. ठीक है, देखो यहाँ पे देयर वाज वन फिलोसोफर जॉन लॉक करके थे, राइट? और एक थे जीन जैक्यूस रूसो, बराबर. इन्होंने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट. फिर एक मॉन्टेस्क्यू करके थे. मॉन्टेस्क्यू ने क्या डिमांड किया था? उनकी स्पिरिट्स ऑफ लॉ करके बुक थी, एंड उन्होंने डिमांड किया था कि मतलब उनका आइडिया था दैट द गवर्नमेंट बॉडी शुड बी इनटू 3 पार्ट्स, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी. रूसो का आइडिया क्या था? रूसो का आइडिया था दैट द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. याद आया सबको? Yes, miss. फाइन. दक्ष अनम्यूट कर लो, चलेगा. याद रखो बच्चा लोग, फिलोसोफर्स कौन कौन से थे. तो उनको अभी जो थर्ड स्टेट लोग थे, उनको जो रूसो थे उनका फिलोसॉफी याद आया. उनको फिलोसॉफी क्या था? उन्होंने बोला था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रखो जब भी आप लोग काम कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड. यहाँ पे लिखा है, देखो. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in the book Social Contract. के क्या होना चाहिए? Everyone should get a right to vote and not only a single person should vote. So that is why they were following the ideas of Rousseau, and उन्होंने decide किया कि हम लोग demand करेंगे कि हमारा भी vote होना चाहिए, हमारा भी per person vote होना चाहिए, and not per state. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. But जब भी ये demand किया वो लोग ने, the king did not accepted this demand, and when the king did not accepted the demand, the third estate people they were angry कि भाई हमारा भी कोई point होना चाहिए जब हम कुछ demand कर रहे हैं, तो even that should be fulfilled. But since that was not fulfilled, they were angry and they walked out of the assembly. जो assembly built की गई थी उनसे वो लोग बाहर चले गए. पार्थ, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes. कौन चला गया बाहर असेंबली से? अनम्यूट बच्चा, अनम्यूट. कौन बाहर चला गया असेंबली से? मैम, जो दूसरे लोग आए थे. कौन दूसरे लोग? नई टेक्स्ट बुक आई नो यू आर एक्साइटेड टू सी दैट न्यू टेक्स्ट बुक, बट पहले सुन लो ना व्हाट एम आई सेइंग.
what did third estate demanded? That we should have a single vote, but that demand was not fulfilled by the king. The king rejected that demand, and that is why the king were angry and they walked out of the assembly. Okay, ध्यान दो. Next, the representative of the third estate viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. That now the representatives जो थे ना, they were seeing themselves कि अगर पूरा third estate को मुझे हम लोग को represent करना पड़ेगा, पूरे category को हमको represent करना पड़ेगा. On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. अभी देखो यहाँ पे स्टेट जनरल क्या था, ये भी एक असेंबली थी, पर ये कौन सी असेंबली थी? जो किंग लोगों ने बुलाई थी, जो फर्स्ट स्टेट वाले थे जो सेकेंड स्टेट वाले थे, उन्होंने स्टेट जनरल बनाई थी. बट ये क्या है, नेशनल असेंबली कौन सी है? जो थर्ड स्टेट के लोगों ने बनाई सी. व्हेन द डिमांड वाज रिजेक्टेड दे वर एंग्री, और उन्होंने 20 जून को डिसाइड किया कि हम वर्सेल्स में एक टेनिस कोर्ट है, वहां पे जाके उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, वी वुड क्रिएट एन असेंबली. वो असेंबली का नाम क्या था? नेशनल असेंबली. एंड उन्होंने वहां पे क्या डिसाइड किया कि टिल द टाइम वी आर नॉट गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बनाया नहीं जाता है, एंड जब तक पावर मोनार्क जो किंग है खाली उसके हाथ में नहीं होना चाहिए, वो पावर सबको दिया, मतलब it should not be in the power of monarch itself, not only the person should have that power. जब हमारी ये दो डिमांड पूरी, मतलब ये एक डिमांड पूरी होगी कि मोनार्क जो किंग है उसके पास अकेले के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, जब तक ये डिमांड हमारी पूरी नहीं होंगी हम लोग ये टेनिस कोर्ट से बाहर नहीं जाएंगे, जो उनका नेशनल असेंबली है. सो इन एग्जाम यू गेट क्वेश्चन, what is National Assembly, what is States General. So you should know State General was created by the people, states, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट उन्होंने ये बनाया था. एंड ये क्या है, नेशनल असेंबली, इट इज क्रिएटेड बाय थर्ड स्टेट पीपल. व्हाई दे क्रिएटेड इट? बिकॉज दैट डिमांड फॉर पर्सनल वोटिंग वाज नॉट फुलफिल, एंड दैट इज व्हाई दे क्रिएटेड नेशनल असेंबली. फाइन, इज दिस क्लियर? Yes, miss. Okay. Yes, ma'am. They were led by Mirabeau and Abbassius. Now this is a French word, guys, so pronunciation may differ, but आप लोग खाली spelling याद रखना, because in exam you need to write it. You are not going to give an oral exam. तो आप लोग सिर्फ spelling याद रखना. They were led by Mirabeau and Abbassius. Mirabeau was born in a noble family. अभी देखो noble family मतलब क्या हो गया? Second state का. अभी ये second state से है Mirabeau, but still he was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege. वो noble family से थे, second estate से थे, but still he was supporting ये नेशनल असेंबली. क्यों वो सपोर्ट कर रहे थे? बिकॉज उनको भी ही वॉज ऑल्सो कन्विंस के ये जो फ्यूडल प्रिविलेज है, मतलब क्या कि सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के लोगों को सारे प्रिविलेजेस होने चाहिए. ये जो थॉट है उनसे वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि ये गलत है, एंड इवन थर्ड स्टेट पीपल शुड गेट प्रॉपर राइट. एंड ये जो चीज था उनका, मतलब दैट ही वाजंट कन्विंस्ड विद दिस आइडिया, एंड दैट इज व्हाई Mirabeau, being born in a noble family belonging to second estate, was still supporting national assembly, और वो उनके सपोर्ट में थे. समझा ये पार्ट? अभी सेकंड सपोर्टर कौन है? अभी देखो मिराबियो के बारे में, सेकंड सपोर्टर एबेसियस है और एक है मिराबियो. इन दोनों के सपोर्ट से नेशनल असेंबली अच्छे से चल रही थी. He brought out a general and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. कि जो थर्ड स्टेट के क्राउड्स थे वर्सेल्स में, उनको वो अच्छे अच्छे स्पीचेस देते थे और उनको मोटिवेट करते थे that even you people should fight for your rights, कि आपका जो राइट्स है उसके लिए आप लड़ो, एंड आप
बेफालतू में टैक्स मत पे करो, आप you fight for your own rights. Fine. See, this is a picture. The tennis court oath. जो टेनिस कोर्ट है जहाँ पे जनरल असेंबली थर्ड स्टेट ने बनाई है, सॉरी नेशनल असेंबली, क्या नाम है, नेशनल असेंबली, जो नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट ने बनाई है, इतने सारे लोग थे, जमा थे, एंड दे वर प्रिपेयरिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में उनको क्या ऐड करना था, दैट द किंग शुड नॉट हैव अ solo power, the power should be divided. ये उनका मेन मोटो था. समझा यहाँ तक? Yes. See guys, I have this tendency, I randomly take test. कोई भी लेक्चर में मैं randomly test लूंगी. I'll ask questions, you have to write, or else since अभी virtual चल रहा है, I'll ask you guys question and आपको मुझे orally answer देना पड़ेगा. If you guys are not giving it, but a strict action would be taken, because अभी जस्ट आपका न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, आप लोग फ्री हो, आपके इतने सारे लेक्चर्स कंडक्ट नहीं हो रहे, सो टू लर्न आंसर्स, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज वे इजी. मैं रैंडमली 1-2 सेशन के बाद टेस्ट लूंगी, एंड इफ यू गाइस डोंट स्कोर गुड, then sir will see. Fine. Less than 1 minute we have. Make sure जो मैं खाली पढ़ा रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट इजी होने. See, the concept is clear to you guys. आप लोग अच्छे से आंसर दोगे. तो मेरा मानना क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझो. अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है पूछो, ठीक है. 1 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, वापस वही लिंक से ज्वाइन करना, 2 मिनट रुकना, बिकॉज रिकॉर्डिंग सेशन है, वो रिकॉर्ड होता है, तो 1 मिनट लगता है. 1 मिनट के बाद I will take you guys in the session again. So try joining after 1 minute. ठीक है. यहाँ तक हम लोग ने किया कि नेशनल असेंबली को कौन सपोर्ट करा था, मीराबियो. वो अगेन नोबल फैमिली से थे, बट स्टिल उनको पट रहा था ये, उनको ही वाज कन्विंस्ड के फ्यूडल प्रिविलेज रॉन्ग. बोलो, अभी सेशन खत्म हो जाएगा, रुको नेक्स्ट सेशन में बोलना, अभी बोल दो चाहिए तो क्या बोल.